क्वेश्चन भी आपको इसी स्क्रीन पे शेयर होंगे, पढ़ लो, नोट्स बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो जैसे आपको पढ़ना पड़े। Just let me know when you're done with this page. Then we'll move forward. Scroll down the line. For that also. क्या लाइन है पढ़ के बताओ। One. Return to the national. 30%, but that doesn't mean that the experience has to be the same. These are somewhat easier paragraphs to get जो actual जैसे कैम्प वाले जो paragraphs होते हैं बहुत ज़्यादा hard, ठीक है, ये वाले थोड़े easier हैं. These are from banking examinations. और आपका जो इंटरव्यू वाला जो राउंड होता है उसमें जो पैसेजेस आते हैं वो इससे भी ज़्यादा आसान होते हैं, बट वो उससे क्वेश्चंस थोड़े ट्विस्टेड आते हैं. जैसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसमें जो लाइन इसमें मेंशन है वो लाइन ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे, वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन आएगा. For those who have read the हुआ उस पैसेज को क्या मीनिंग हमने करना चाह रहा है इसमें. Yes, first paragraph का क्या मीनिंग है? Can you describe the first paragraph in one line? इसमें जो भी बात कहा गया है क्या आप one line में describe कर सकते हो उसको? I mean, first paragraph, it's almost dealing about e-governance, how form of government will be changed, and how its work out will change too.
Okay, so basically in the first paragraph, it has been said that there are some issues related to dealings with the government and public sector. So the issues are being talked about, and then the solution that the next generation, next revolution may be e-governance, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या फिर एक अपना एक वेबसाइट के थ्रू जो गवर्नमेंट और पब्लिक का इंटरेक्शन है, that has been becoming you can say very much easier from the past years. ठीक है, अभी भी गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे एप्स डेवलप हुए हैं जिनकी वजह से इंटरेक्शन थोड़ा आसान हो गया है, because prior to this हमारा जो भी interaction होता था, we have to go through a number of you can say government employees to get a work done, right? कोई भी काम करवाने के लिए आपको एक number of employees से आपकी फाइल जाती थी, so your interaction was limited to 1 to 2 person, right? कोई बहुत ही लोअर लेवल पे जहाँ पे फाइल सबमिट हो रही है या फिर जहाँ पे फाइल फॉरवर्ड की गई, only these two places were the places where you were interacting, actual interacting. But nowadays जब e-commerce का मतलब क्या होता है, जैसे if you are buying something from Flipkart, ठीक है, तो Flipkart में आजकल नया फीचर आ गया that you can track your order, like where exactly is your order and how much time will it take to reach you. तो वो जो tracking order है, that gives you some sense of you can say patience. Yes, this much time is left for the package to come. यहाँ पर अभी तक पहुंचा है, यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम लगेगा. So it gives you a sense of patience, like it gives you a sense of thing हाँ कुछ हो रहा है, right? And prior to this, मान लीजिए कि अगर आपने कुछ ऑर्डर किया था, prior to this the order tracking system was not there, ठीक है, तो आपके पास ये नहीं रहता था कि हाँ इतने दिन में आना था, इतने दिन नहीं आया, कहाँ चला गया. Like you were in constant anxiety state कि वो जो मेरा पैकेज था वो कहाँ गया. Similar to the government, आपने एक फाइल या आपने एक फॉर्मेट जो है उसके लिए किसी भी चीज के लिए एक एप्लीकेशन भेजा, अब वो एप्लीकेशन कहाँ तक फॉरवर्ड हुआ, कहाँ पर अप्रूव हुआ, कहाँ पे डिसअप्रूव हुआ, ये सारी चीजें आप तक नहीं पहुंचती थी, और जब पहुंचती थी तब तक बहुत लेट हो जाता था, राइट? दीज थिंग्स हैपन प्रायरली, ठीक है, ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी साथ हुई होगी, जो बच्चे लोन के लिए अप्लाई करते थे. इफ समवेयर एट सम पॉइंट्स एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, जब तक उनके पास ये नॉलेज आता था कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तब तक टाइम चला जाता था. बट नाउ डेज एवरीथिंग इज इन द विद इन द वेबसाइट, यू विद इन few days you will know your application is rejected, why is it rejected and what you can do to reapply it. ठीक है, विद इन टाइम ड्यूरेशन आप दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं एंड योर लोन कैन बी अप्रूव्ड. अंडरस्टैंड? So these things, like through the social media or you can say website of any kind of website that was developed basically for the governance or for other sites, आपका जो interaction है, जो actual procedure है governance का, उससे आपका interaction थोड़ा बढ़ गया है. Moving on to the next paragraph. What is in the next paragraph? Done with the second paragraph.
Okay, so the second paragraph is stating a real life example. यहाँ पर एक real life example दिया जा रहा है how you can the interaction between the government and the public has improved through the websites. ठीक है, एरिज़ोना का एक प्रोविडेंसी है that is Phoenix, वहाँ पर कार रजिस्ट्रेशन, ट्रैफिक फाइन्स पे करने के लिए, लोकल लॉस्ट आइडेंटिटी कार्ड्स रिप्लेस करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट बना दी गई है. एंड आफ्टर रिमूविंग दैट, ठीक है, जो पहले का पुराना एंडलेस क्यू वाला ट्रांजैक्शन होता था, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन, उसमें उन्हें $5 लगते थे. ठीक है, $5 कैसे लगते थे? बिकॉज दे हैव टू गो थ्रू अ सर्टेन प्रोसीजर. ठीक है, उनको वहां पर जाके पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता था, दैट एप्लीकेशन हैज टू कॉस्ट. ठीक है, उस एप्लीकेशन फॉर्म पर स्टैम्प वगैरह लगाने के लिए कॉस्ट, फिर उसको आगे फॉरवर्ड करवाने का कॉस्ट, वो सारी चीज मिलाकर $5 लगता था एक एप्लीकेशन का. नाउ बिकॉज इट इज ओनली ऑनलाइन, वहां पर सिर्फ आपको कॉस्ट उतना लग रहा है, हाउ मच कॉस्ट ओनली यू कैन से कि वहां पर एक एप्लीकेशन फाइल करने का एक कॉस्ट लग रहा है. वो जो आपके यू कैन से स्टिकर्स एंड ऑल, वो सारे कॉस्ट आपका रिड्यूस हो गया. सो पेपर कॉस्ट रिड्यूस हो गया, एक तरह से कह सकते हैं. मैनुअल कॉस्ट एक तरह से रिड्यूस हो गया, बिकॉज ओनली 1 to 2% आर लुकिंग एट द वेबसाइट एंड दे आर जस्ट फॉरवर्डिंग द योर एप्लीकेशन ऑनलाइन. ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फाइल ट्रांजैक्शन, कोई भी चीज ट्रांजैक्शन करने के लिए बहुत आसान है. सो ओनली योर ऑफिशियल जो भी आपका एक रिकॉर्ड है, ये पूरा रिकॉर्ड है, एक ही साथ ये पूरी फाइल उठ के वहां पर चली जाएगी अथॉरिटी के पास कि इस बंदे ने, इस पर्टिकुलर पर्सन ने कार रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स एंड दीज आर अरेंज्ड इन दिस फॉर्मेट. पूरा फॉर्मेट चेक करने के बाद इट हैज बीन अप्रूव्ड. प्रोसीजर बहुत फास्ट हो गया. अंडरस्टूड. यहाँ पर कॉस्ट रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से जो पब्लिक है उसे बहुत खुशी हो रही है, बिकॉज दे हैव लेसर amount of, you can say, money that has to be given and lesser amount of effort that has to be put in. ठीक है, मान लीजिए आपको कार रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो पहले आपको फाइल करना होता था कार रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे. वेरिफिकेशन के बाद मान लीजिए गलती से कोई वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपका छूट जा रहा है, तो उसमें फिर आपको कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज लगते थे कि वो फिर से वेरीफाई करवाने के लिए. तो इट वाज अ वेरी लॉन्गर प्रोसीजर. एंड राइट नाउ अगर आपका मान लीजिए कि जैसा मैंने कहा कि अगर रिजेक्ट होता है फाइल कोई भी, ठीक है, क्यों रिजेक्ट हुआ है, विद इन अ कॉलम, ठीक है, कॉलम में रिजेक्ट हुआ है, स्टेटस ऑफ योर फाइल एप्लीकेशन एंड व्हाई इट वाज रिजेक्टेड और व्हाई इट वाज सिलेक्टेड है, तो वो अप्रूव करके लिख देगा. तो उस टाइप का जो आपका प्रोसीजर है, उससे क्या हुआ है कि बहुत ही आसान हो गया है काम करना प्लस काम करवाना. ठीक है, इफ एज अ पब्लिक इफ यू आर अप्लाइंग समथिंग, तो फॉर एप्लीकेशन आपके लिए बहुत आसान हो गया. एंड विद इन यू कैन से 1 or 2 days that file has been processed through, और उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अ legit example, a real life example how it has been implemented for both the benefit of taxpayer and revenue department. यानी कि revenue department जो है उसको भी जो एक्चुअल पैसा है, क्योंकि वो जो $5 लगते हैं वो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नहीं जाता था. ये $1.60 जो लगते थे, सिर्फ इतना आपका जाता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट में. एक्स्ट्रा जो पैसा खर्च होता था वो बीच में कहीं अटक जाता था. उसकी वजह से क्या होता है कि पब्लिक को भी लॉस हो रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी लॉस हो रहा है. ठीक है, अब क्या हुआ कि दोनों में इतना ही पैसा जाना है. ठीक है, ओनली द एप्लीकेशन फाइल चार्जेस आर देयर. तो वो एप्लीकेशन फाइल चार्जेस कहाँ जाएंगे? आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास, because they have the record कि this particular person has been applying for this particular application और इतना उसका cost होता है application का, तो इतना पैसा उसने दिया. ठीक है, why see even in India there are a lot of verification that has to be done. जैसे मान लीजिए आप कितने भी competitive exam के लिए apply करते हैं, तो जो online applications होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको जितना पेमेंट वहां पर करना होता है, आपको पूरा अमाउंट वहां पे दिखाया जाता है. राइट, अगर आप ऑफलाइन करने जाते थे, जब आप ऑफलाइन करने जाते थे, देयर हैज टू बी प्रोसीजर. ठीक है, आपको डीडी बनवाना होता था बैंक से, फिर वो डीडी जाता था आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता था उसे डीडी फॉर्म सबमिट करना होता था बैंक में, तब वो पैसा उनके अकाउंट में जाता था. अभी क्या है, डायरेक्टली आप अकाउंट में उनके ट्रांसफर कर देते हैं, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन जो आप फाइल एप्लीकेशन फाइल करना होता है.
and then you are ready to give the examination when they get their MA card, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये सारी चीजें जो है बीच का जो प्रोसीजर है, प्लस अ लॉट ऑफ फ्रॉडरिज्म हैड बीन यू कैन से omitted फ्रॉम दिस प्रोसेस, ठीक है। आपको कोई फ्रॉड नहीं बना सकता है। हालांकि ऑनलाइन में भी बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे कि कुछ भी फॉर्म निकल आते हैं इधर उधर के, बट स्टिल इन गवर्नमेंट वेबसाइट, अगर आप एक गवर्नमेंट वेबसाइट बना रहे हैं तो उस वेबसाइट में फ्रॉड होने का कम चांसेस है, आपके पैसे इधर उधर होने के कम चांसेस है, बिकॉज इट इज गवर्नमेंट वेरीफाइड, ठीक है। आपका कहीं पे पैसा जाएगा तो कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट को ही जाएगा, ठीक है। इवन इफ यू वांट इट बैक, लाइक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है तो उसके लिए फाइन कट के जितना आपका पैसा वापस आना है वो आपके पास वापस आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज गवर्नमेंट विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है दैट दिस पर्सन हैड पेड दिस मच मनी एंड दे वांट दिस मनी बैक, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। पहले क्या होता था कि रिकॉर्ड नहीं होता था, मान लीजिए आपका डीडी भी है तो वो 50 डीडी सबमिट करिए, रिसिप्ट सबमिट करिए, फिर उसके बाद ये सारी फाइलें बीच में कहीं गुम हो गई, फिर पैसा वापस नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। सो दिस प्रोसीजर हैज बीन omitted from this. Moving on to the next paragraph. Third paragraph क्या है आपका? Third and fourth paragraph, these are the last one, नहीं और भी है, जल्दी जल्दी पढ़िए, एटलीस्ट आप पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद क्वेश्चन हम लोग आंसर कर पाएंगे। Okay, there is another example of Singapore website, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट वेब डेवलपमेंट का बात किया जा रहा है। For cost benefit comes from more competitive bidding, easy access to global suppliers and time saved by online processing of orders. तो बेसिकली आपका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी एक बिजनेस था वो भी आपका ऑनलाइन चला गया है, ठीक है। जो भी बिडिंग्स होती हैं आपकी ऑनलाइन बिडिंग्स होती हैं, किस चीज के लिए? बिडिंग्स आपकी इंडिया में भी होती है बट ऑनलाइन नहीं होती है अभी तक मेरे ख्याल से, बिकॉज देयर आर पब्लिक टेंडर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको रेलवेज का ये करना है, रिनोवेशन करना है, ट्रेन बनवानी है कोई नई, कोई पब्लिक के लिए पुल बनवा रहे हैं, तो सबका आपका टेंडर जो है उसका बिडिंग होता है, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो अपना वेरिफिकेशन सेंड करते हैं, फिर उनको बुलाया जाता है, बकायदा बिडिंग होती है, उससे जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। एंड हाईएस्ट बिडिंग डज नॉट मीन्स ओनली द मनी, ठीक है। सिर्फ मनी का नहीं होता है, आपका वेरिफिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा पैसा लगा रही है बट उनका जो प्रोजेक्ट का आप टाइमिंग है, ठीक है, वो 3 महीने या 4 महीने ले रहा है, and there is a company who is taking a lesser amount of money or giving lesser amount of money and they are more efficient, ठीक है, they are ready to deliver the product, जो भी आपका मान लीजिए जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो आपको 1.5 महीने में या 2 महीने में पूरी तरह से कंप्लीट कर देगी। So obviously that one is the winner, ठीक है। तो money is not the only thing that is in the bidding here. यहाँ पर bidding की क्या बात हो रही है, सिंगापुर डेवलपमेंट में किस चीज की bidding यहाँ पे बात की गई है? The global suppliers, ठीक है, आपके जितने भी आउटसाइड उनके कंट्री से जाते हैं या आपके कंट्री से उनकी कंट्री में जो प्रोडक्ट्स जाते हैं, उन सबका जो एक आप कह सकते हैं कि पूरा जो प्रोसीजर है प्लस आपका जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स गोइंग देयर एंड कमिंग आउट, वो सारा कुछ आप ऑनलाइन डाल दिए उसने, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले फाइलों में रहता था वो सारा ट्रांजैक्शन, अभी वो पूरा का पूरा ऑनलाइन चला गया। सो यू कैन चेक दैट कि कितना प्रोडक्ट आपका जा रहा है इंडिया से बाहर, सिंगापुर के कितना प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, वो सारी चीजें यू कैन कंफर्म इट फ्रॉम द वेबसाइट, ठीक है। And many private companies are also buying the products, ठीक है। जो भी प्राइवेट कंपनी, जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो उनको बेचा जा रहा है, गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें भी आपकी ऑनलाइन चली गई हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट यूजफुल प्रोडक्ट फॉर Indian municipalities to give work. Yes, that is what I was talking about. गिव वर्क यानी कि आपका जो भी काम होता है, म्यूनिसिपैलिटी जो होती है वो क्या करती है, जो भी आपका डेवलपमेंट करवाना होता है, ठीक है, सड़क ठीक करवानी है या फिर
कोई भी छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन करना है, वो सारी चीजों के लिए क्या होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है टेंडर जाने का, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से, या आप कह सकते हैं 100% तो मतलब अभी नहीं है, बट कुछ ना कुछ आपका एटलीस्ट जो फाइलें जा रही हैं, जो रिकॉर्ड जा रहा है, वो सारा आपका ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। किया जा रहा है, ट्राई किया जा रहा है जाने का, जो कि अभी यूएस गवर्नमेंट ने कर दिया है। ambition of the British government, which has the target of converting 100% of the transaction in its citizen। मतलब उनका ये टारगेट था कि 2005 में वो सब कुछ पूरा 100% गवर्नमेंट का वेबसाइट बना दिया जाए और सारा रिकॉर्ड उसमें रखा जाए। इवन वेरी स्मॉल थिंग, ठीक है। आजकल हमारा जो जैसे आधार कार्ड का ये चला था कि आपका आधार कार्ड हर चीज से लिंक होना चाहिए, या फिर आपका आधार कार्ड एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए आपके पास, ठीक है, वो आईडी आपके पास रहनी चाहिए। ये पहले नहीं थी, ठीक है। ये क्यों लाई गई? सो दैट गवर्नमेंट हैज अ रिकॉर्ड दैट दिस पर्सन एग्जिस्ट, एंड इनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमारे पास एक ही बार आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव वॉच्ड एनी फॉरेन मूवी, ठीक है, आपने हॉलीवुड मूवी अगर कोई देखी होगी, तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन का आईडी से आप उसके डेंटल रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं, ठीक है, आप उसके हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं, आप उसके इफ दे हैव वन टू सम क्राइम, ठीक है, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, उनके एजुकेशनल रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम अ वन आईडी, सिर्फ एक आईडी से या कभी कभार सिर्फ एक फिंगरप्रिंट से आप उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। दैट मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन दैट लिव्स ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड अंडर दैट गवर्नमेंट इज नोन बाय दैट गवर्नमेंट, ठीक है। उस गवर्नमेंट को उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वाज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। यहाँ इंडिया में बहुत से ऐसे लोग थे जिनका आप कह सकते हैं कि सिर्फ जनगणना में नाम था, पर उनका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था दैट दैट पर्टिकुलर पर्सन एग्जिस्ट, ठीक है। उसकी वजह से बहुत सारा फ्रॉड होता था, बहुत लोग मर जाते थे, उनके नाम पे पैसा उठाया जा रहा था, उनके नाम पे राशन उठाया जा रहा था। ये सारी चीजें जो थी, that was only because there was no record for those people who are existing or not existing. That is why it was you can say a major change that the government has done। यहाँ पर आधार कार्ड हर चीज से लिंक करने बोला गया है, और आधार कार्ड एक बेसिक यू कैन से एक बेसिक आपके पास इंफॉर्मेशन है अपने बारे में कि you belong to this particular country and yes, you exist in this country। Okay, next is there is a record of something। यहाँ पे एक रिकॉर्ड बताया गया है किसी का। Civics in India will say, oh, e-government will never work in India है, that is I यहाँ पर missing है। We are so poor and we don't have computers, but they are wrong। there are many experiments put in India, ठीक है। यहाँ पर लोग क्या कहते हैं कि आप पूरी तरह डिजिटाइजेशन नहीं कर सकते किसी चीज का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल फोन्स अभी तक नहीं है, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है अभी तक। दे आर नॉट एबल टू एक्सेस दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बट द थिंग इज कि आपको एक्सेस नहीं करना है ना। It is not necessary that even if I have a record in government, ठीक है, मेरी आईडी से अगर कोई रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास, तो जरूरी नहीं है कि I have to access from my own system, राइट। मैं कैफे में जाके उसका एग्जिस्टेंस पता कर सकती हूँ। मेरा एक रिकॉर्ड रहेगा गवर्नमेंट के पास, सो दैट इफ आई मान लीजिए कि मेरे ऊपर कोई केस हो जाता है दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज मर्डर्ड दिस पर्टिकुलर पर्सन, तो मेरा एक जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है वो गवर्नमेंट के पास तो रहेगा ना, कि हाँ इस बंदी के ऊपर कोई चार्जेस कभी नहीं लगे, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसका एजुकेशन इतनी अच्छी जगह से हुआ है, शी इज वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारा रिकॉर्ड तो उनके पास रहेगा। दे डोंट नीड, मुझे जरूरत नहीं है कि मेरे पास सारा अपना रिकॉर्ड है, मेरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होना जरूरी है, सो दैट दे नो दैट आई एग्जिस्ट एंड हाउ आई एग्जिस्ट। अंडरस्टूड? तो इसी वजह से यू कैन मूव ऑनलाइन, पर्टिकुलरली हर चीज आप ऑनलाइन मूव कर सकते हैं, ओनली इफ यू लुक इन अ वे। ये चीज भी आप एक तरह से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट विल बी इन वेरी मच कंट्रोल ऑफ यू, ठीक है। गवर्नमेंट आपके हर एक मूव पर कंट्रोल कर सकती है, बट ऑब्वियसली इफ यू देर आर सम थिंग्स दैट इज बेटर टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि अगर there are some powerful people, if they have cases against
some innocent people, अगर उस innocent people के पास record रहता अपना कि I have not been involved in any, you can say, criminal record, मेरे नाम पे नहीं है कोई, अगर फर्जी बनवाया जाता तो ऑनलाइन तो जाना तभी पॉसिबल है जब कोई गवर्नमेंट कर्मचारी डालेगा, क्योंकि दे आर द वन एक्सेसिंग द गवर्नमेंट वेबसाइट्स। तो इस पॉसिबिलिटी को हटाने के लिए यू हैव टू डू व्हाट, आपको करप्शन हटाना पड़ेगा वहां से, ठीक है। ओके, दिस पैसेज जो है, ये पैसेज बहुत बड़ा हो गया, यू आर टेकिंग टू मच टाइम इन रीडिंग दिस, तो एटलीस्ट लेट्स सी इफ वी कैन आंसर दीज क्वेश्चंस और नॉट। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस आपके इसके बाद के ही हैं, मेरे ख्याल से इस पैसेज के बाद के ही हैं। Only because which country has the most ambitious plan for e-governance? इसका आंसर दे सकते हो? Can you answer this question? According to the passage, which country has the most ambitious plan for e-governance? Look at the passage. पैसेज देखिए और आपको बताइए इसका आंसर मुझे दे सकते हैं। यूके, ओके, सो फर्स्ट आंसर आपका यूके हो गया। दिस you have not read right now. Choose the word that is opposite to the meaning of decimal abbreviation passage. Decimal का actual meaning क्या होता है? Decimal का actual meaning क्या होता है? What do you understand by the word decimal? डेसिमल का मतलब क्या होता है? आज 23 है, right? Yes. Okay, decimal means that you are discussing something. Discussing मतलब कि आप रिगार्ड नहीं कर रहे हैं उसका जो इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं किसी को, या फिर आप मतलब आप डिसमिस कर दे रहे हैं किसी को। दैट मीन्स इफ आई एम आस्किंग यू समथिंग, यू आर नॉट एक टाइप से इग्नोर कर रहे हैं या मुझे हट जाने के लिए बोल रहे हैं, तो यू आर डिसमिसिंग समथिंग। तो इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? आप में से किसने लॉगिन नहीं किया? नहीं किया? सबने लॉगिन किया हुआ? देखिए एक बार के दे दो आपको अटेंडेंस 12 में। बैच 1 26 and 28 13 batch 1 only 2 and 31. Yes, so what will be the opposite meaning of dismissal? Dismal और dismiss का क्या meaning opposite हो सकता है? Grim का मतलब क्या होता है? Grim का मतलब होता है when you are in not a very good mood or you are very grumpy. ठीक है, आप शुरू से मतलब मूड खराब है दिन भर आपका, that is very grim. ठीक है, approve मतलब क्या होगा कि आप अप्रूव कर रहे हैं कोई चीज, यानी कि आप मान रहे हैं। ठीक है, आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं एक तरह से। प्लीजिंग मीन्स आपको खुश है या फिर आपके लिए वो अच्छा चीज है। बेटर मीन्स इससे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, एनरिच मतलब एनरिच किसके लिए बोला जाता है?
enrich and pleasing are similar meaning words, ठीक है, but enrich cannot be used in the place of pleasing and pleasing cannot be used in the place of enrich, ठीक है. enrich मतलब कि किसी को बढ़ाना या किसी को अच्छा कर देना, ठीक है, better कर देना, ठीक है. but better होना यानी कि if I'm saying that you are getting better at speaking English, that means you are getting better, ठीक है, and your communication skills are enriched, मतलब कि आपके skills enriched हुए हैं, ठीक है. तो you cannot use both interchanging, ठीक है. आप दोनों चीज को better को और enrich को similar meaning होने के बावजूद interchange नहीं कर सकते, ठीक है. there are certain places where enrich is used, certain places where better is used. यहाँ पर dismiss का क्या होगा, dismiss मतलब कि आप उसको हटा दे रहे हो, ignore कर रहे हो. So which one should be the option that is opposite meaning? Approve. आप लोग का क्या? Pleasing. Okay. See, dismiss मतलब क्या कि आप एक तरह से उसे इग्नोर कर रहे हो और उसे हटा दे रहे हो, ठीक है. And इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर अप्रूव कर रहे हो, ठीक है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. प्लीजिंग मींस क्या होता है कि आप खुश हो या फिर आप मतलब जो भी आप से बात कर रहे हैं या फिर जो भी आपसे काम कर रहे हैं आप उस काम से खुश हो, ठीक है. तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा दैट यू आर डिसअपॉइंटेड इन दैट पर्सन, ठीक है. ओके, कैन यू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन? Okay, we have not read this particular paragraph, I think. ठीक है, I will continue this thing, ठीक है, क्योंकि इसका पोर्शन ऐसा है कि मैं इसको आपको भेज नहीं सकती हूँ. तो ये हम कंटिन्यू करेंगे और एक पैसेज आपको मैं होमवर्क के लिए सेंड कर दूंगी, तो वो पैसेज बना के लाऊंगी मेरे. ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी डाउट? कोई पैसेज में ऐसा वर्ड जो आपको नहीं समझ में आया था? नोट करते रहना. एंड आई एम सेंडिंग यू अनदर पैसेज, उसके भी कोई वर्ड्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, सो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी. राइट डाउन दोज वर्ड, फाइंड आउट द मीनिंग. इफ यू स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वहां पर क्यों यूज हुआ या कैसे यूज हुआ, वो मुझसे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है. विल बी डूइंग फॉर एटलीस्ट 1 वीक कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपका थोड़ा सा वीक है, एक तरह से आपको समझ में आना चाहिए सब कुछ. तो आई एम डूइंग दिस फॉर अ होल वीक, ठीक है. उसके बाद फिर आपका टेस्ट पर वीक. Okay, that's all for today.